आदाब नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। फेस मास्क ना पहनने पर जुर्माने का लजूम। कोविड नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 2 मरीज नमूदार होने के बाद रियासत भर में हाई अलर्ट। अर्बन रेवेन्यू मिशन के तहत मुस्तहक खानदानों को अलाट करदा मकानात की जल्द तामीर के सिलसिले में रियासती वज़रा का जायज़ा इजलास। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जल्द काम शुरू करने के लिए की नुमाइंदगी। साइबर क्राइम साइबराबाद की जानिब से फर्जी एसबीआई कॉल सेंटर और लोन कॉल सेंटर पर धावे। जुमला 28 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में फेस मास्क को लाजिम करार दिया गया है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने आयद करने का फैसला किया गया है। कोविड के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की वजह से ये किया जा रहा है। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने ओमाइक्रॉन वेरिएंट के तनाजुर में रियासत की आवाम से मुहतात रहने की भी अपील की है। मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने तफसीली बात की और कहा कि बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफरीन के नमूने लिए जा रहे हैं और इंतज़ामिया वेरिएंट से निपटने के लिए पूरी तरह चौकस है। उन्होंने कहा है कि कोविड की ये नई शक्ल कब रियासत पहुंचेगी ये नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि अवाम से अपील की जा रही है कि वो एहतियाती इक़दामात को अपनाएं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में जियो जारी किया गया है और फेस मास्क का इस्तेमाल आम मकामात पर न करने वालों के खिलाफ 1000 रुपये जुर्माना आयद करने की भी बात कही गई है। ఇలాంటి కాంటినెంట్స్లో వచ్చేసేసి అమెరికా కానివ్వండి ఆల్రెడీ వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ విస్తృతంగా జరుగుతుంది. మనం కొత్త వేరియంట్స్ డెవలప్ కాకుండా వాటిని కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటున్నాం. అదే సౌత్ ఆఫ్రికాలో అలాంటి పరిస్థితి లేదు. అక్కడ ప్రజలకి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఏదైతే వ్యాక్సిన్ డోస్ అందించాలో అవి అందించకపోవడం వల్ల ఈ వ్యాక్సిన్లో ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉండటం వల్ల ఇలాంటి పరిస్థితులు వస్తున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితులు లేకుండా మన ప్రజలందరూ కూడా అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. అలాగనే ప్రపంచంలోని ఇతర దేశాలకు కూడా వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా మనం దీన్ని కంప్లీట్గా ఈ కొత్త వేరియంట్స్ రాబోయే రోజుల్లో డెవలప్ కాకుండా ఉండటానికి మనకి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఆల్రెడీ మనం ఇప్పటికే మొదటి డోస్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం 90% పైగా కంప్లీట్ అయింది. కేవలం 10% మందే మనకి ఇంకా ఫస్ట్ డోస్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగనే సెకండ్ డోస్ వచ్చేసేసి 47% ఈరోజు మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇంకొక 53% రాబోయే రోజుల్లో డిసెంబర్ 31 లోపు మనం ఇచ్చుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో దీనితో పాటు ఏదైతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇంతకుముందే చెప్పాం. వ్యాక్సిన్తో పాటు మన చేతిలో ఇంకొక ఆయుధం ఉంది. ఇది వ్యాక్సిన్ కంటే కూడా పవర్ఫుల్ ఆయుధం. అది ఇమీడియట్గా మనకి ప్రొటెక్షన్ కలిగిస్తుంది. అది మన చేతిలో ఉన్న మాస్క్ ఆర్ మన జేబులో ఉన్న మాస్క్. మన జేబులో ఉన్న మాస్క్లే మనకి వ్యాక్సిన్ లాగా పనిచేస్తాయని చెప్పేసి ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకోవడం జరిగింది. దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా మీరు మాస్క్ని తూచా తప్పకుండా ధరించండి. ఈ రోజు నుంచి మాస్క్ ధరించకపోతే ఆల్రెడీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఆర్డర్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఎన్ఫోర్స్లో ఉన్నాయో 1000 రూపాయల ఫైన్ ఏదైతే, దయచేసి అలాంటి పరిస్థితులు తెచ్చుకోవద్దు. మీరు మీ బాధ్యతగా, వ్యక్తిగత బాధ్యతగా, సామాజిక బాధ్యతగా మీరు మాస్క్ ధరించడాన్ని మీరు అలవాటు చేసుకోండి. వచ్చే 2-3 నెలలు మాస్క్ ధరించినట్లయితే తప్పకుండా ఏదైతే థర్డ్ వేవ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నామో, ఏదైతే మన పిల్లల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది అనుకుంటున్నామో అలాంటి పరిస్థితులు రాకుండా మనం చూసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా మాస్క్ ధరించండి. లేకపోతే తప్పకుండా కూడా ఎవరైతే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అథారిటీస్ ఉన్నాయో వాళ్ళు 1000 రూపాయలు ఫైన్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగనే అన్ని రకాల పని ప్రదేశాలలో, అలాగనే అన్ని రకాల పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో, అది మీరు పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ రోజు నుంచి మీ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ని కూడా వెరిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా వాళ్ళ ఫోన్లో కానివ్వండి లేకపోతే ఒక హార్డ్ కాపీ రూపంలో కానివ్వండి వాళ్ళు 2 డోసులు తీసుకున్నట్లు. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఇంటర్నేషనల్ ప్రయాణికులు ఎవరైతే ఒక కంట్రీ నుంచి ఇంకొక కంట్రీకి పోవాలంటే కంపల్సరీగా వ్యాక్సిన్ పాస్పోర్ట్ కావాలి. ఓకే, ఆ వ్యాక్సిన్ పాస్పోర్ట్ని ఉన్నప్పుడు మాత్రమే
ఇప్పుడు చూడండి 2 డోసులు వేసుకొని ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా 72 గంటల ముందు మళ్ళీ మన దేశంలో పెట్టిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అండ్ వాళ్ళు వచ్చే 6 గంటల 5 గంటల జర్నీలో ఇంటర్నేషనల్ జర్నీలో వచ్చేసేసి వేరే వాళ్ళని ముందున్న వాళ్ళని వెనుకున్న వాళ్ళని ఇన్ఫెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. తద్వారా కొత్త వేరియంట్స్ని మన దేశంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగనే మన దేశంలో కూడా ఏదో టైంలో మళ్ళీ కొత్త వేరియంట్స్ డెవలప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మనం వేరే దేశాలకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటన్నిటికి సంబంధించి మీరు కంప్లీట్గా ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ, పని ప్రాంతాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే సినిమా హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక పార్క్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, ఒక హోటల్కి రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు కానివ్వండి, మీరు దయచేసి మీ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ క్యారీ చేయండి. మా హెల్త్ స్టాఫ్ ఎక్కడికక్కడికి రెగ్యులర్గా जिले संगारेड्डी के इंद्रेशम में वाक़ रेजिडेंशियल स्कूल में 27 तालिबात कोविड से मुतासर पाई गई हैं। एससी रेजिडेंशियल गर्ल्स हॉस्टल में जुमला 900 तालिबात हैं, जिनके मुंजमला ताहाल 300 कोविड टेस्ट किए गए हैं। मज़कूरा 300 टेस्टों में 27 रिपोर्ट मुस्बत आई हैं। DMHO संगारेड्डी गायत्री देवी ने भी इस खबर की तस्दीक की है। कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया की जानिब से मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीज़न्स का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का जायज़ा लिया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का पैदल दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। उन्होंने सब्ज़ी मंडी एरिया, गंगापुत्र संगम एरिया, रसूल गुलशन मस्जिद, मदीना मस्जिद, शरफी चमन, दरियाबाग, टोली मस्जिद के अलावा अताफ व अकनाफ का तफसीली दौरा किया और वहाँ जारी कामों का मुआयना भी किया। उन्होंने अहदेदारों पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द मज़कूरा कामों की तकमील अमल में लाए। उनके हमरा GHMC के अलावा बलदी, बरक़ी और आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे। उन्होंने बॉक्स टाइप ड्रेन वर्क जो कि जियागुड़ा, राम सिंहपुरा, यादव संगम से शुरू किया गया है, उसके कामों का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। मैं बोल दिया साहब को बोल दिया इनाग्रेशन बैठे सब मोरी के पास मेरी गाड़ी पब्लिक ट्याब चावल చెప్పారు ఇంతకు వేసేస్తుంది లైన్ వేస్తే వాళ్ళకి స్పీక్ చేసిరు ఈయన కూడా అంటే పర్మిషన్ లేదు చెప్పి ఎవరు స్పీక్ చేశారు నేనే వికెట్ సార్ నేనే వికెట్ మిస్టర్ చెప్పి అడిగాడు పర్మిషన్ చేపిస్తా చెప్పాడు ఆ శివాలను కట్టే ఇట్లా తీసుకోవాలి మన అలాగే ఉదర్ నాలే అదే తీసుకోరా అరే నా పేట్ फारूक भाई उसमें कल 5 कामा दिए कल 2 सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के बल्दी मुख्तलिफ डिवीज़नों का तफसीली GHMC के आला अहदेदार, वाटर वर्क्स के आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया। सब्जी मंडी, गंगापुत्रा संगम एरिया, शरफी चमन एरिया, रसूल गुलशन मस्जिद, मदीना मस्जिद, मोहसिन किराना स्टोर, इन तमाम बस्तियों का तफसीली दौरा किया गया। और उसके बाद साथ ही साथ पटेल होटल से जियागुड़ा की मेन रोड का बाउंड्री का काम चालू हुआ।
उसका भी मुआयना किया गया। और साथ ही साथ काची बस्ती, राम सिंहपुरा और इन तमाम इलाके जात का तफसीली गुड्डी मलका पोर्टिजन का भी तफसीली दौरा किया गया। और साथ में वार्डवर्स, आला अहदेदार, GHMC के आला अहदेदारों के साथ में जहाँ पे जो मसाइल थे उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और कई काम बाकी है, इंशाअल्लाह उन तमाम कामों को भी मुकम्मल करने का हिदायत दी गई और तयखुन दिया गया। और मैं आप तमाम से अपील करता हूँ इस मीडिया के ज़रिए, आपके बस्तियों में जो भी मसाइल रहेंगे आप मुझको, मेरे इब्तदाई के सदर मोतमदीन या मेरे कॉर्पोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाएगी। और आज के दौरे के अंदर तमाम कॉर्पोरेटर्स, तमाम वर्कर्स, तमाम के साथ में एक्टिव वर्कर्स के साथ में तफसीली दौरा किया गया। शुक्रिया खुदा। अर्बन रेवेन्यू मिशन के तहत तामीर किए जाने वाले मकानात का काम शुरू करने के सिलसिले में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने रियासती वज़रा से नुमाइंदगी की है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने एक जायज़ा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर के साथ आइए कुछ और खबरों पर तफसीली तौर पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा हल्के असम्बली मलकपेट, अंबरपेट और गोशा महल के अरकान असम्बली के हमरा एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए JNNURM स्कीम के तहत मज़कूरा हल्कों में तामीर किए जाने वाले 2336 मकानात की तामीर के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नुमाइंदगी की कि कई सालों से मज़कूरा काम तातुल का शिकार है, जबकि मुस्तहिक़ीन इन मकानात के इंतज़ार में है। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि साल 2006-2008 में मज़कूरा स्कीम के तहत 10,178 मकानात की तामीर का फ़ैसला लिया गया था और 2,336 मकानात मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलाट भी किए गए थे, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सके। उन्होंने तयक़ुन दिया कि अनक़रीब इस मसले को हल कर लिया जाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर ना तो ये एक बार बुलाएंगे वो क्लियर नहीं होगा तो टेम्पल का है, उनसे भी सब बात होगी। आप एक हफ्ते का टाइम दिए तो सबको आपके पास दे देंगे। वही बोल रहा हूँ मैं, वो टेम्पल का है, ये अलग है, ये लेना पड़ना पड़ेगा। इसके एस्टिमेट्स वगैरह बन गए, रेंटो कलर और फाइनल लेते हैं, रेंटो कलर और असेंबली को रेंटो కూడా మల్టీపర్పస్ రెండు మల్టీపర్పస్ ఏంటంటే రెండింటి కూడా అదొకటి ఎమ్మెల్యే గారు ఆ రోజు అసెంబ్లీ అని చెప్పి सब कॉन्फ्रेंस दे दिया ठीक है वो है ये हो गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील की गर्ज से इक़दाम में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के नामपली जाफ़र हुसैन मिराज ने फ़ुटबॉल ग्राउंड मल्लेपल्ली में तरक्याती कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर ज़फ़र खान के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मल्लापल्ली डिवीज़न नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो फुटबॉल ग्राउंड है, एक ज़माने से यहाँ पर जो सीवरेज लेंथ थी वो 8 इंच की लेंथ थी, इसको रीमॉडल करके 12 इंच की लेंथ डालने के लिए एक प्रपोज़ल था, जो काफ़ी वाटर वर्क्स में फ़ंड्स की कमी की तरफ से पेंडिंग होते जा रहा था। अभी जो MLA बजट आया, उस बजट के अंदर 10 लाख रुपए का यहाँ पर सीवरेज के लिए सैंक्शन किया गया, जो वर्क का आज इनाग्रेशन अमल में आया है। उसके साथ साथ ये फुटबॉल ग्राउंड को मेंटेनेंस के लिए, जैसा फुटबॉल ग्राउंड के अंदर वॉकिंग ट्रैक है, ग्राउंड मेंटेनेंस है, ये जितनी मैश उखड़ जा रही, ये सब के लिए एक 5 लाख रुपए का काम वो भी चालू हुआ है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के क़यादत में रात दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, चाहे वो MLA हो, कारपोरेटर हो या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन हो, तमाम आवाम के बीच में रह के आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज मेरे साथ में मल्लापल्ली नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब ज़फ़र खान साहब, उसके साथ साथ यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड के जो ज़्यादा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार हैं, जमात की नॉलेज में ला के उस काम को मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अल्लाह का करम है कि नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करोड़ों रुपये के काम चल रहे हैं। अभी मुझे खुशी इस बात की है कि अफजल सागर का जो नाला था उसको वाइडनिंग करके प्रोजेक्ट के अंदर काम करना था, वो भी ऑलरेडी टेंडर हो गया है जिसकी लागत 12 करोड़ रुपए है। उसके अलावा बलकापुर नाले का भी टेंडर लगा है जिसकी लागत 56 करोड़ रुपए है, वो भी टेंडर पे आ गया है। इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले बरसात के अंदर जहाँ जहाँ भी वाटर स्टैग्नेशन रहेगा उसको भी पूरा दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पर जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदार यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना कानून-साज कौंसिल के लिए MLA कोटे के तहत मुनक़्क़िद होने वाले इंतखाबात में TRS के 6 अरकान कानून-साज कौंसिल G. सुखेंदर रेड्डी, कड़ियम श्रीहरी, कौशिक रेड्डी, T. रविंदर, वेंकट राम रेड्डी और B. प्रकाश ने जुमेरात के रोज़ अबूरी सदरनशीन कानून-साज कौंसिल भोपाल रेड्डी के चैम्बर में MLC की रुकनीत का हलफ लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्लुचारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बादशाह G. सुखेंदर रेड्डी, कड़ियम श्रीहरी और T. रविंदर ने उन्हें दोबारा मौका देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। శాసన పరిషత్ సభ్యులుగా ఎన్నికైనందున నిజమైన విశ్వాసం విధేయత చూపుతానని భారతదేశ సార్వభౌమ स्टैंड निकालो बस तो दे निकल रहा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को खसारे से मुनाफा बख्श महकमा बनाने के लिए RTC बसों के किराए में इजाफा नागुज़ीर है और अगर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और MD RTC वी सजनार की तजवीज़ को मंजूरी और ग्रीन सिग्नल देते हैं तो ऑर्डनरी बसों के लिए किराए में 25 पैसे और डिलक्स बसों में 30 पैसे फ़ी किलोमीटर का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 100 किलोमीटर सफ़र करने वालों को 25 और 30 रुपये का इजाफी माली बोझ आयद होगा, जबकि हैदराबाद से भद्राचलम सफ़र करने वालों को 100 रुपये, हैदराबाद ता मैसूर जाने वालों को 210 रुपये और हैदराबाद से शिरडी रवाना होने वालों पर 180 रुपये इजाफी माली बोझ आयद होगा। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को आला कमान की जानिब से सदर TPCC के ओहदे पर जब से फायज किया गया है तब से वो तेलंगाना में पार्टी को मुस्तहकम करने के सिलसिले में शब व रोज़ मसरूफ़ हैं। इसके अलावा हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने मुनज़्ज़म करने, 2023 में पार्टी को इक़्तिदार पर फायज करने,
बूथ सतह पर पार्टी को मुस्तहकम करने और हर असेंबली हलके में एक कोऑर्डिनेटर का इंतखाब अमल में लाने के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ वो मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। इसके अलावा रेवंत रेड्डी पार्टी में दाखिली इंतशार को भी ख़त्म करने में कामयाब रहे और उनके कट्टर मुखालिफ सीनियर कांग्रेस कायद व रुकने पार्लियामेंट कोमट वेंकट रेड्डी को भी मनाने में वो कामयाब हुए। कोमट वेंकट रेड्डी ने इंदिरा पार्क धरने में शिरकत करते हुए तमाम इख्तलाफात को भी दूर कर लिया था। सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला ने ट्वीट करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार की जानिब से आरटीसी किराए में इजाफे की वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को पेश करदा तजवीज़ की सख्त मजम्मत की और कहा कि पहले ही से रियासत की आवाम महंगाई को लेकर परेशान है और अगर आरटीसी के किराए में फ़ी किलोमीटर 25 और 30 पैसे की तजवीज़ को वज़ीर आला ग्रीन सिग्नल देते हैं तो रियासत की आवाम पर मज़ीद माली बोझ आयद होगा। वाईएस शर्मिला ने वज़ीर आला से मुतालिबा किया कि वो आरटीसी के टिकटों में इजाफा करने से गुरेज करे। वज़ीर फ़िनांस हरीश राव को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दुबाक और हजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात के बाद मेदक एमएलसी नशिस्त पर मुकामी इदाराजात के तहत मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवार यादव रेड्डी को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है, जहां पर उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला के अलावा खुद टीआरएस पार्टी के बागी उम्मीदवारों से है। इस सिलसिले में हरीश राव ने मेदक एमपीटीसी और जेडपीटीसी अराकीन के साथ एक इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए ये वाज़ेह किया कि मेदक एमएलसी नशिस्त से टीआरएस उम्मीदवार आसानी के साथ कामयाबी हासिल कर सकता है, लिहाजा क्रॉस वोटिंग करने से गुरेज किया जाए। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज मदरसों में मॉडलाइजेशन स्कीम के तहत असातिज़ा की तनख्वाहों की अदम इजराई से मुतालिक लोकसभा में सवाल उठाया। सदर मजलिस ने बताया कि 50,000 असातिज़ा को तनख्वाह जारी नहीं की गई। बैरिस्टर ओवैसी के सवाल पर मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने एतराफ़ किया कि बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें इस सिलसिले में एक मकतूब भी लिखा था। उन्होंने कहा कि हम इस स्कीम के तहत मदरसों को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क में तकरीबन 28,590 मदरसे हैं, जहां पर 1,47,000 से ज़ायद असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासतों की सिफारिशात के मुताबिक हुकूमत काम करती है और जब रियासतों से यूसी आएगा तो हुकूमत कार्रवाई करेगी। यात्रा पर जाएं। असदुद्दीन ओवैसी जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? ओवैसी जी, मैं हमारे मंत्री से पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्कीम में मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में इन्होंने कहा कि 520 करोड़ रुपए दिए यूपी में। सर, यूपी में आपने अब तक 5 साल में कितने पैसे दिए और इस साल देने का कितना पैसा देंगे वो मदरसा मॉडर्न स्कीम के साथ? 50,000 टीचरों को तनख्वाह नहीं मिली। मंत्री जी जवाब दीजिए इसका। आदरणीय ओवैसी साहब, आपने इस संबंध में एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस संबंध में आपका पत्र भी आया। मदरसों में और इसके अलावा जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उनमें अलग अलग जो हमारे केंद्र सरकार के और राज्य सरकारों के भी एजुकेशनल एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं, उसके तहत लोगों का एजुकेशनल एम्पावरमेंट हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। जहां तक सवाल है मदरसों का, अलग अलग मदरसों के बारे में जो ये आप दोनों मित्र हैं? नहीं, आप अलग, आप दोनों मित्र हैं, दोनों मिलकर बात कर लेना। मदरसों का पूछा है उन्होंने, उसमें जो है वो इस देश में जैसा कि आप जानते हैं आप दोनों कि लगभग 28,590 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं और उसमें जो है वो 1,47,000 टीचर्स हैं और इन 1,40,000 टीचर्स के अलावा जो है वो हमने जो अलग अलग स्टेट के मदरसे बोर्ड हैं उन मदरसे बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा जो भी रिकमेंडेशन आती है
उस रिकमेंडेशन के आधार पर हमने जो है वो अभी 3-4 दिन पहले ही जो है वो उन राज्यों की जो मांगे थी उसको हमने अप्रूव किया है और उनसे यूसी आएगा तो उसके बाद रिलीज होगा। थैंक यू। साइबराबाद क्राइम साइबराबाद पुलिस ने उत्तम नगर देहली में चलाए जा रहे एक फर्जी एसबीआई कॉल सेंटर पर धावा किया और 14 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनके खिलाफ साइबराबाद हुदूद में 14 और मुल्क भर में 195 केसेस दर्ज हैं। मज़कूरा मुलज़िमीन अपने आप को फ़ोन कॉल्स पर एसबीआई के एम्प्लॉयज़ ज़ाहिर करते हुए खातेदारों को रकमी धोखा दे रहे हैं। मज़कूरा कॉल सेंटर से कई इलेक्ट्रॉनिक अशिया भी ज़ब्त की गई, जबकि मज़कूरा टोली करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी में मुलविस पाई गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। इसी तर्ज पर साइबराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने कर्ज फराहम करने का झांसा देने वाली 2 वेबसाइट्स को चलाने वाले फर्जी लोन कॉल सेंटर पर भी धावा किया और 14 अफराद को यहां से भी हिरासत में लिया गया। मज़कूरा वेबसाइट से भी कर्ज का झांसा देते हुए कस्टमर्स को धोखा दिया जा रहा था। इस मामले के बारे में भी कमिश्नर पुलिस साइबराबाद ने मीडिया को तफसील से आगाह किया। बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान खान अपनी फिल्म अंतिम के प्रमोशन के लिए हैदराबाद पहुंचे थे, जिन्हें देखने के लिए मदाहों की भीड़ फोरम मॉल वाक़े कूकटपल्ली पर जमा देखी गई। कुछ मिनटों के लिए सलमान ने अपने मदाहों से बात भी की और हैदराबाद और यहाँ के हालात के बारे में उन्होंने फ़िक्रे भी सुने। अच्छा किया उनसे पूछो जिनकी शादियां हो चुकी हैं। अभी हाल मैंने होटल में बिरयानी खाई। जीएचएमसी एहलकारों की लापरवाही की वजह से सुलेमान नगर इलाके में 5 साला मासूम बच्चे की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक मेनहोल का रिंग पिछले 6 महीने से रखा हुआ था, जिसको मुंतकिल नहीं किया गया था। 5 साला बच्चा खेल रहा था कि वो मेनहोल का रिंग उस पर गिर पड़ा और वो मकाम हादसे पर ही फौत हो गया। इत्तला मिलते ही मुतल्लिका पुलिस ने मकाम हादसे का मुआयना किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। उठा दिए थे इधर ऑलरेडी 2 जन। बच्चे क्या गली में देखा ढक्कन डाले गली का भी नहीं होता है, अपनी गली कैसे खाली। नौजवान टास्क फोर्स टीम ने तिरुमलगिरी क्रॉस रोड पर धावा करते हुए फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया और 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया। पुलिस के मुताबिक 32 साला जी वेंकटा कृष्णा वासु के अलावा एन अरुमुगम को हिरासत में लिया गया, जिनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक अशिया के बशमूल नकद रकम भी जब्त की गई है।
रायनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने बैरूनी अफराद की तनक़ी की गरज से तलाशी मुहिम चलाई। नाइजीरियाई शहरियों के हलचल की वजह से मज़कूरा कार्रवाई की गई। डीसीपी शमशाबाद जोन प्रकाश रेड्डी के मुताबिक 40 बैरूनी शहरियों को हिरासत में लिया गया है, जो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए वीज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी मुक़ीम थे। जुमला 150 पुलिस मुलाजिमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जबकि 3 व्हीकल्स को भी जब्त किया गया है। डीसीपी शमशाबाद जोन ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताई। రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో సన్ సిటీ పిఎన్టీ కాలనీ బండ్లగూడలో కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో ఏసీపీ రాజేంద్ర నగర్, ఇన్స్పెక్టర్ రాజేంద్ర నగర్, 5 ఇన్స్పెక్టర్స్, 150 మంది పోలీస్ సిబ్బంది, సైబరాబాద్ ఏఆర్ సిబ్బంది పాల్గొనడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లో వేరే దేశస్తులు మన దేశంలో వీసా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఉండే వాళ్ళపైన మనము ఆపరేషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ ఒక 40 మంది ఇట్లా ఉన్నట్టు మనకు సమాచారం ఉంది. వాళ్ళపైన మనం కార్డినెన్స్ సెర్చ్ నిర్వహిస్తే ఒక 20 మంది వరకు మనకు దొరికినారు. వాళ్ళలో ఎవరెవరికైతే డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్పైర్ అయినాయో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎఫ్ఆర్ఆర్ఓ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేసి వాళ్ళ దేశానికి పంపించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా వీళ్ళకి వీసా కన్సర్న్ దేశం వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత వివిధ కారణాలు చెప్పి కోవిడ్ అని, తర్వాత వాళ్ళ స్టూడెంట్ సెమిస్టర్స్ మిగిలి ఉన్నాయని చెప్పేసి వీసా ఎక్స్టెన్షన్ కోరుతున్నారు. అటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా గుర్తించడం జరిగింది. మనం ఇంటి ఓనర్లుగా అందరినీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే, ఇంటి ఓనర్లు కంపల్సరీగా వేరే దేశాల వాళ్ళకి మీరు రూమ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఫామ్ సి అనేది ఉంటుంది. ఆ ఫామ్స్లో పూర్తి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి వీళ్ళవి. అదంతా మీరు కలెక్ట్ చేసుకొని వెబ్సైట్లో అప్లోడ్ చేయాలి. లేని ఎల్లా వాళ్ళపైన కూడా చట్టరీత్యా నేరం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళు ఏమైనా రేపు ఏదైనా కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే, డ్రగ్స్ కేసెస్లో కావచ్చు, మిగతా కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయితే అప్పుడు ఆ ఓనర్స్ కూడా లయబుల్ అవుతారు. అట్లా కాకుండా ఉండాలంటే వీళ్ళు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇంటి ఓనర్స్ తీసుకోవాలని మనము మనవి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ కూడా మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఈ కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ ద్వారా ఇంకా 3 2 వీలర్స్, ఒక సస్పెక్ట్, దొంగతనాలు ఉన్న సస్పెక్ట్ని కూడా మనం పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్డినెన్స్ సెర్చ్ ఆపరేషన్ ఇంకా వేరే ఏరియాస్లో కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది. సీసీటీవీస్ పైన, తర్వాత మిగతా సైబరాబాద్ పోలీస్ చేపట్టే కార్యక్రమాలపైన ప్రజలకు అవగాహన కూడా కల్పించడం జరిగింది. నగర్ పిఎస్ లిమిట్స్లో సుమారుగా 100 మంది వరకు ఉంటారు. ఇందులో ఒక 40 మంది వరకు ఓవర్ స్టేయింగ్ ఉన్నారు, అంటే వీసా అయిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అందులో ఈరోజు మనం ఈ ఆపరేషన్ ద్వారా ఒక 20 మందిని గుర్తించి తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళలో ఎవరెవరికైతే డాక్యుమెంట్స్ అయిపోయినాయో వాళ్ళందరినీ కూడా ఎఫ్ఆర్ఆర్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేసి కన్సర్న్ దేశానికి పంపించడం జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళపై ఏమైనా కేసు నమోదు చేసే అవకాశం ఉందా సార్? ఓస్ట్ దానికి ఏమైనా లేదు. ఇది ప్రొసీజర్ ప్రకారము వీళ్ళపైన డైరెక్ట్ ఎఫ్ఆర్ఆర్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు డిపోటేషన్ ఆర్డర్ ఇస్తారు. దాని ద్వారా వాళ్ళని ఆ దేశానికి పంపించి మళ్ళీ మన దేశానికి రాకుండా బ్లాక్ లిస్ట్లో చేర్చడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ సర్చ్ ఆపరేషన్లో గాంజా కానీ డ్రగ్స్ కానీ మనం పట్టుబడింది. आइए देखते हैं वफे के बाद की खबरें। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता राउडी शीटर एम सतीश और मलकपेट पुलिस स्टेशन हदूद के रहजन सैयद मुदस्सिर के खिलाफ कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने पीडी एक्ट का नफाज अमल में लाते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस की जानिब से एक एलामिया भी जारी किया गया।
मोहतरमा साहिबजादी हमीद उन्निसा बेगम ज़ौजा नवाब मोहम्मद गौस मोहिउद्दीन का 2 दिसंबर को इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद पायगां वाक़े रियासत नगर में अदा की गई और मुतसल क़ब्रिस्तान में तदफीन अमल में आई। मरहुमा का ताल्लुक़ खानवादे खुर्शीद जा पायगा से था। पसमानदगान में फ़र्जंद नवाब मोहम्मद मोइज़ ख़ान शामिल हैं, जबकि मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 9618237047 पर डायल किया जा सकता है। मोहतरमा नवाब मोहम्मद सुल्तानुद्दीन ख़ान मरहूम की दुख्तर, जबकि नवाब ज़फ़र जंग बहादुर की पोती और नवाब शमशामुद्दौला बहादुर की पड़नवासी थी। छियालीस साला सैयद साजिद वल्द सैयद खमरुद्दीन जाविद दिल का दौरा पड़ने से अचानक इंतकाल कर गए। सैयद साजिद दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज वाक़े दारुस्सलाम में पिछले 18 साल से सीनियर सिस्टम प्रोग्रामर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। तालीम मंडल वाक़े अंदरून फतेह दरवाज़ा के वो कदीम साकिन थे। नमाज जनाजा जुमा को मस्जिद गंडे मिर्ज़ा वाक़े तालीम मल्लड़ दूधबावली रोड पर अदा की जाएगी, जबकि तदफीन चिराग अली नल से मुतसल क़ब्रिस्तान में अमल में आएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर्स 8247747123 या फिर 9346225197 पर रब्त किया जा सकता है। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। फेस मास्क ना पहनने पर जुर्माने का लजूम। कोविड नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर। पड़ोसी रियासत कर्नाटक में 2 मरीज नमूदार होने के बाद रियासत भर में हाई अलर्ट। अर्बन रेवेन्यू मिशन के तहत मुस्तहक खानदानों को अलाट करदा मकानात की जल्द तामीर के सिलसिले में रियासती वज़रा का जायज़ा इजलास। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जल्द काम शुरू करने के लिए की नुमाइंदगी। साइबर क्राइम साइबराबाद की जानिब से फर्जी SBI कॉल सेंटर और लोन कॉल सेंटर पर धावे। जुमला 28 अफराद गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। इसके साथ रूबरू न्यूज़ यहीं अख्ताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबरू न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।